upload. भाई गाने बंद कर यार। Good evening, everyone. Good evening. Okay, so we completed the first chapter of political science last week, power sharing. Have we? Done. Any questions on that chapter? Anything you want to ask? No, ma'am. There isn't. Oh, beta Ayushman. See, what is majoritarian? It's not majoritarianization, it's majoritarianism. Right? And we'll just discuss it. Give me 1 second. About the test. See, but I don't have any. Am I not audible? Irwan, am I not audible to you? Am I audible to everyone? Great. Yes, ma'am, you are audible. Thank you, Beta. About the test on Sunday, see, I don't have any information about it. All right, thank you, Ajay. So I need to ask from Mr. Rohil, and I'll get back to you if there would be any test. We'll definitely be informing you in the group. All right. Okay, now the question about majoritarianism. Majoritarianism is a term which says that majority rules. It is a belief that majority community should be able to rule a country in whichever way it wants, right?
majority should be able to rule a country in whichever way it wants without, yes, majority would be able to should be able to rule a country without in whichever way it wants without regarding the needs of the minority community, without taking care or disregarding the needs of the minority community. This is what majoritarianism is. Now, there is a difference between majoritarianism and democracy. See, democracy is also rule of majority, and majoritarianism also is a rule of majority. The difference lies in the way in which they rule. Democracy never disregard the needs of any community, whether majority or minority, in its rule. But majoritarianism means that the ruler can rule in whatever way it wants because it has the power and it does not regard the needs of the minority communities. Have you got the difference or the meaning of majoritarianism now? Good. Any other question from power sharing, beta? Any other question from power sharing? Okay. Great. So now we'll be starting up with the second chapter of political science, as we are taking 2 chapters of every part of your social studies. Yes. Excuse me, ma'am. जी बेटा बोलिए. Will you repeat the syllabus of history for the test? बेटा टेस्ट के लिए मैंने बता दिया. I have no information regarding the test right now. I don't know whether your test would be held on Sunday or not. Right? So if there would be any test, okay, you would certainly be intimated in your this class group, right? And the syllabus thus would also be shared. Beta, see, there is another, the second chapter of political science is also a very small chapter, federalism, where we are going to learn about the federal policies of a country and something about decentralization or the local level governments, right? Panchayati Raj and municipalities. It's probably, if the time allows, we are going to finish up the chapter within this stipulated time of class only, and definitely we'll be starting up with history soon. If we are finishing up with political science right now, starting up with geography. Because why I'm not taking history's chapter, because we have to complete only 1 chapter of history before your term, second term, sorry, first term, half yearly, right? That is nationalism in India. ठीक है, हिस्ट्री के 3 ही चैप्टर आपके फाइनल में आ रहे हैं, तो इसीलिए बाकी सबके मैं 2-2 चैप्टर कंप्लीट किया करूंगी और हिस्ट्री का सिर्फ 1 चैप्टर. ठीक है, तो हिस्ट्री का जो चैप्टर है जो वो हम स्टार्ट करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग 2 चैप्टर्स ऑफ ज्योग्राफी आल्सो. सिविक्स का भी रिड्यूस हो गया, लेकिन सबसे कम चैप्टर्स हमारे हिस्ट्री के हैं 3, बाकी सबके 4 या 5 चैप्टर हैं. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अब कि अभी आज हो सके तो आज हम पॉलिटिकल साइंस अगर कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट वीक से हम ज्योग्राफी के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे. ज्योग्राफी में आपका फर्स्ट चैप्टर आ रहा है, सेकंड चैप्टर नहीं आ रहा है, थर्ड चैप्टर आ रहा है. एग्रीकल्चर है थर्ड, एग्रीकल्चर इज फोर्थ चैप्टर आई थिंक, है ना? फोर्थ आ रहा है. वाटर रिसोर्सेज शायद नहीं आ रहा है आपको इस बारे में. वाटर रिसोर्सेज एंड मिनरल्स वाला नहीं आ रहा है. नहीं आ रहा है, हाँ जी. तो हम इसका ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, और सेकंड चैप्टर जो सेकंड कमिंग चैप्टर होगा, ठीक है, एग्रीकल्चर है वो फोर्थ चैप्टर. तो उसमें शायद 3 या 4 लेक्चर्स लगेंगे. देन विल स्टार्ट अप विद नेशनलिज्म इन इंडिया. नेशनलिज्म इन इंडिया इज सच अ लॉन्ग एंड लेंथी चैप्टर दैट्स गोना टेक एटलीस्ट 3 to 4 लेक्चर्स. ठीक है, तो वो हम लास्ट में पकड़ते हैं.
All right, so let's start up with federalism today. Federalism is nationalism in Europe ही है बेटा, वो है rise of nationalism in Europe. फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री नहीं है बेटा, लेकिन दैट इज द फर्स्ट चैप्टर वी डू इन हिस्ट्री. जब हिस्ट्री करेंगे हम डिस्कस कर लेंगे बेटा फर्स्ट क्या करना है, ठीक है. यस, ओनली द मैप ऑफ वाटर रिसोर्सेज इज कमिंग. तो हिस्ट्री जब स्टार्ट करेंगे देन विल डिस्कस वेदर वी आर गोइंग टू डू इंडिया और यूरोप. बट लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन पॉलिटिकल साइंस नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. लेट्स स्टार्ट इट अप. ठीक है. फेडरलिज्म is something, the concept of federalism we have already got in the first chapter of political science, that is power sharing, when we learned about the 4 forms of power sharing. What are the 4 forms of power sharing? Can anyone tell me what are the 4 forms of power sharing? First is horizontal or power sharing between different organs of government, vertical or power sharing between different levels of government. Yes, and the third one, yes, power sharing between different Political parties. Political parties बेटा लास्ट में है. थर्ड है between community, yes, social group. लक्ष्य, yes, it is Akriti Mahir. It is power sharing between social groups, right? Like the community government in Belgium and the reservation system in our country, that is power sharing with different social groups. And the third and the fourth form of power sharing is power sharing between different political parties, pressure groups and movement groups, right? So these are the 4 forms of power sharing which we read in the previous chapter. And federalism is the second part of power sharing that we learned. The second part of power sharing was power sharing between different levels of government, which is also known as vertical power sharing, right? Yes, so federalism is a chapter that deals with the vertical arrangement of power sharing in the government, right? So federalism, what is the definition of federalism? सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे. It is a system of government in which power is divided between central authority and various constituent units in the country, right? The power when is divided between different between the central authority and different constituent units. सबसे पहले पावर जो होती है वो डिवाइड करनी. फेडरलिज्म का मतलब है पावर को डिवाइड करना, शेयर करना, ठीक है. अब पावर शेयर कैसे होती है? नॉर्मली क्या होता है कि ज्यादातर कंट्रीज जो हैं वो यूनिटरी कंट्रीज होती हैं, मतलब पावर जो है वो एक गवर्नमेंट के पास होती है, ठीक है. सेंट्रल लेवल पे एक गवर्नमेंट होती है जो पूरी कंट्री में रूल करती है. इट वर्क्स फॉर द होल कंट्री. ओनली वन सेंट्रल पावर, वन सेंट्रल गवर्नमेंट. दैट इज कॉल्ड अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है. यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी व्हेन देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द इफ देयर आर फेडरलिज्म की डेफिनेशन आई जस्ट रिपीट, अभी यूनिटरी देख लो बेटा. तो फेडरलिज्म हो गया व्हेन द इट इज the form of unity government ho gaya when there is only one level of government, and if the subordinate units are there, if the other units are there, they are subordinate to the central body, ठीक है. यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं. फेडरल गवर्नमेंट होता है when the power is divided between central authority and various units. मतलब कि सेंट्रल अथॉरिटी होगी और उसके साथ उसके हेल्पिंग हैंड्स होंगे, अलग अलग क्या कहते हैं उसे, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होंगी उसकी, ठीक है. उन यूनिट्स के पास अपनी पावर होगी. फेडरलिज्म में all the units have got their own power and they are not subordinate to the central government. मेन पॉइंट फेडरलिज्म का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि the power is divided between central and its constituent units which are called as state governments. फेडरल यूनिट्स या स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं उनको, उनके बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पावर सबको डिवाइडेड होती है.
ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी पावर्स रहेंगी और जो फेडरल यूनिट्स होंगी या जो स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी उनके पास अपनी पावर होगी. एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स विल नॉट बी सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. दैट इज द ट्रू फेडरल स्ट्रक्चर. ट्रू फेडरल स्ट्रक्चर होता है जिसमें द स्टेट गवर्नमेंट्स विल नॉट बी सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल यूनिट. ये चीज हमेशा ध्यान रखना. तभी हम आगे पढ़ेंगे कि इंडिया इज नॉट अ ट्रू फेडरल, ऑल्दो इट the political structure of India is based on federalism only, but it is not a true federal structure. क्योंकि इंडिया में जो states हैं वो Harsh beta, we are not discussing about why the syllabus is not reduced by the state governments, right? So please concentrate on what I am teaching here. फेडरलिज्म में पूरी कंट्री एक गवर्नमेंट होती है जो पूरी कंट्री के लिए होती है और इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर सम फ्यू सब्जेक्ट्स. कुछ सब्जेक्ट्स या कुछ पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं, एंड देन देयर आर स्टेट गवर्नमेंट्स व्हिच हैव गॉट डिफरेंट पावर्स एंड दे वर्क अकॉर्डिंग टू देयर पावर्स. दे डोंट हैव टू आंसर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अबाउट एनी डिसीजन दैट दे दिस आई रिपीट अगेन. करमजीत, India, why India is not a federal structure? This will be learning again. दोबारा हमारे चैप्टर में आगे ये पूरा टॉपिक है उस पर डिस्कस करेंगे. लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि इंडिया ट्रूली फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि इंडिया में जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो 100% फ्री नहीं है. दे आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, कुछ पावर्स उनके पास इंडिपेंडेंट है, लेकिन कुछ पावर्स के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट हैं, उनकी बात माननी पड़ती है. लेकिन ट्रू फेडरल स्ट्रक्चर में जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, दे आर कंप्लीटली हैव अ डिफरेंट structure. They are completely we can say not subordinate, not answerable to the central government, right? So usually federal government has got two levels. दो लेवल होती हैं यूजुअली फेडरल गवर्नमेंट की, सेंट्रल एंड स्टेट लेवल्स. ठीक है, लेकिन हमारे इंडिया में इट्स अ 3-tier सिस्टम. 3-tier सिस्टम है हमारे इंडिया में, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल. यूजुअली वर्ल्ड में जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है इट इज ओनली सेंट्रल एंड स्टेट. ठीक है, अगर लेकिन इंडिया में वी हैव 3 लेवल्स, तो मिनिमम 2 लेवल तो होती है फेडरलिज्म में. ठीक है, so usually a federation has 2 levels. One is the government of the entire country and which is responsible for a few subjects of national interest. ठीक है, पूरी कंट्री के इंटरेस्ट की जो बातें होती हैं, जब पूरी कंट्री के वेलफेयर की जब बात होती है, वो सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, वो पावर्स जो होती है ना, वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जहां पे पूरी कंट्री के रिलेटेड इश्यूज होते हैं. ठीक है, और जहां पर सिर्फ स्टेट रिलेटेड इश्यूज होते हैं, वो पावर्स होती हैं सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट के पास. ठीक है, one is the government for the entire country and the other are the governments at the level of provinces or states that look after day-to-day administrating of their state. ठीक है, both central and state government enjoy their power independent of each other. ठीक है, मेन हमारा यहाँ पे समझने का इसका टॉपिक जो है मेन, इसको ऐसे समझा जा सकता है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, फेडरलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, दे आर वर्किंग इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. ठीक है, अपने अपनी पावर्स, अपने अपने सब्जेक्ट्स पे वो रूल्स बनाती हैं, एंड दे आर नॉट आंसरेबल टू ईच अदर for whatever decisions they take on the subjects which they have been granted. Am I clear on this? ठीक है, have you got the difference between federal and unitary government? Unitary होगी a government where there is only one level, central level of government, and the sub-units are subordinate to the central government. ठीक है, the central government can pass orders to the provincial or local government also.
यूनिटरी गवर्नमेंट में, ठीक है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। Am I clear on the difference between central and unitary government? Now we have got 7 major features of federal government. Now we know the meaning of federal government. Federal government के 7 major features होते हैं। सबसे पहला feature अभी हमने पढ़ा that it has more than one level, ठीक है, more than one level होता है, 2 or more levels होते हैं उसके। कभी भी एक लेवल की गवर्नमेंट होगी तो वो फेडरल गवर्नमेंट नहीं होगी, वो यूनिटरी गवर्नमेंट होगी। When there is only one level of government, that is central government, it is unitary government. It will not be federal government. But when there are more than one levels of government, that means 2 or more level of government, that is the federal structure of government. Okay? So the first feature of federal government is that it has 2 or more than 2 levels or tiers. Tier भी कहते हैं उसे, ठीक है? Different tiers of government govern the same citizens. हमारे जैसे हम इंडिया में हमारे ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी गवर्न करती है, हमारे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी गवर्न करती है और हमारे ऊपर लोकल गवर्नमेंट भी गवर्न करती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग ग्रुप होगा लोगों का, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग ग्रुप होगा लोगों का और लोकल लेवल के लिए अलग ग्रुप होगा। the different levels of government govern the same group of people. हमारे ऊपर 3 अलग अलग तरह की गवर्नमेंट्स गवर्न करती है। समझ आया? आपने जब क्लास 9th में पढ़ा होगा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चैप्टर, डू यू रिमेम्बर दैट चैप्टर, जिसमें हमने देखा था कि जो इलेक्शंस होती हैं वो 2 तरह से होती हैं, लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन, ठीक है। लोकसभा इलेक्शन होती है जब हम अपने एमपी चुनते हैं, मेंबर पार्लियामेंट, जो मेजॉरिटी में एमपी चुने जाते हैं जिस पार्टी के, फिर वो बनाती है अपना प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिलजुल के बनाती है प्राइम मिनिस्टर। और दूसरे होते हैं विधानसभा के इलेक्शन। विधानसभा के इलेक्शंस को हम असेंबली इलेक्शंस भी कहते हैं, वो स्टेट लेवल के इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। उसमें से जितने भी एमएलएस बनते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनती हैं, वो सारे जो मेजॉरिटी में होंगे वो मिलके बनाएंगे चीफ मिनिस्टर, ठीक है। और थर्ड लेवल की इलेक्शंस होती हैं हमारी पंचायत इलेक्शन, ठीक है। पंचायत इलेक्शन में फिर क्या होता है कि सरपंच बनते हैं, ठीक है। अब सरपंच या म्युनिसिपैलिटी में मेयर्स होते हैं, मेयर के लिए या सरपंच के लिए या चीफ मिनिस्टर के लिए या प्राइम मिनिस्टर के लिए, इन सब के लिए वोट कौन करता है? अलग अलग लोग करते हैं, सेम लोग करते हैं। समझ आया? सेम लोग करते हैं। तीन अलग अलग इलेक्शंस हो जाते हैं, ठीक है। एक हो गए हमारे लोकसभा इलेक्शन जिसमें हम एमपी, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमपी को वोट डालते हैं जो मेंबर पार्लियामेंट बनेगा और आगे जाके प्राइम मिनिस्टर चुनेंगे। सेकंड में हम एमएलए को वोट करते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के, जो आगे जो चल के चीफ मिनिस्टर चुनेंगे। और सेकंड हम अपने लोकल लेवल पे हम अपने what are they called as कॉर्पोरेटर्स को वोट डालते हैं, कॉर्पोरेटर्स, ठीक है। आपने सुना होगा कॉर्पोरेटर की इलेक्शन अभी पीछे हुई थी लास्ट ईयर, यस लास्ट ईयर हुई थी शायद। तो जिसमें हम अपने लोकल मेयर्स को चुनते हैं, ठीक है, और विलेजेस में सरपंच को चुना जाता है। तो सेम ग्रुप ऑफ पीपल वोट फॉर different levels of government. So all the 3 tiers of government govern on the same group of people. This is the second feature of government. But every government has got its own jurisdiction. समझ आ गया? हर एक गवर्नमेंट जो है वो सेम ग्रुप ऑफ पीपल पे रूल करती है, लेकिन हर एक गवर्नमेंट की अपनी ज्यूरिसडिक्शन है। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है एरिया on which it can make laws, ठीक है। jurisdiction होता है the area over which someone has got legal authority, ठीक है। what is the meaning of jurisdiction? The area on which somebody has got legal authority, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, हम सपोज एक क्राइम हुआ है गांधीनगर एरिया में,
तो गांधीनगर एरिया में अगर कोई क्राइम होता है तो उसकी रिपोर्ट जो होगी वो गांधीनगर पुलिस स्टेशन में लिखवाई जाएगी, ना कि वो जाके सिटी के पुलिस स्टेशन में लिखाई जाएगी। ठीक है, अगर आप सिटी की पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने जाएंगे तो वो कहेंगे, द पुलिस पीपल विल से दैट दिस एरिया इज नॉट अंडर अवर ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, वो कहेंगे हमारी ज्यूरिसडिक्शन में ये एरिया नहीं है, आप जाइए और जाके गांधीनगर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाइए। ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब समझ आया आपको? एन एरिया ऑन विच समबडी हैज गॉट अ लीगल अथॉरिटी। ठीक है, तो पुलिस स्टेशन की ही ज्यूरिसडिक्शन नहीं होती है। हर एक जब ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो उसमें जितनी भी लेवल्स होती हैं उनकी अपनी अपनी ज्यूरिसडिक्शन होती है। उसी तरह हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी ज्यूरिसडिक्शन है, मतलब वो अपने सब्जेक्ट्स पे ही लॉज बना सकती है। मतलब वो सब्जेक्ट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए हुए हैं, सिर्फ उन पे लॉज बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ उन्हीं पे लॉज बना सकती है जो सब्जेक्ट्स स्टेट गवर्नमेंट को मिले हुए हैं। ऑब्वियसली वो जो स्टेट गवर्नमेंट को सब्जेक्ट मिले होते हैं, दे आर नॉट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, दे आर ऑफ स्टेट इंपॉर्टेंस। स्टेट के कंसर्निंग जितने भी लॉज है वो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। उसके बाद लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है उनकी ज्यूरिसडिक्शन है अपना एरिया, अपनी लोकल विलेज या अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, अपनी ज्यूरिसडिक्शन, अपने सब्जेक्ट्स पे ही वो लॉज बना सकती है। क्या हमारे एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर दूसरे स्टेट के चीफ के लिए लॉज बना सकता है? नहीं बना सकता। ठीक है, उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट को जो सब्जेक्ट्स मिले हुए हैं, सपोज स्टेट गवर्नमेंट को सब्जेक्ट मिला हुआ है एजुकेशन पे, जो स्टेट लेवल एजुकेशन है उस पे स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना सकती है। क्या स्टेट गवर्नमेंट रेलवेज पे लॉज बना सकती है? नहीं बना सकती, क्योंकि रेलवेज इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ नेशनल कंसर्न का है वो, और स्टेट गवर्नमेंट उस पे लॉज नहीं बना सकती है। दिस इज व्हाट इज ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, सो फर्स्ट इज देयर आर मोर देन 2 or more level of government in the federalism. There are 2 or more level of government. Second feature is that this okay, I have got a question here. If president has the supreme power, then why prime minister? I don't know from where that question has come, although it has nothing to do with what we are studying. ये क्वेश्चन आपका क्लास 9th में क्लियर हो गया होना चाहिए था जब आप चैप्टर पढ़ रहे थे, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जो आपका चैप्टर है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट इज जस्ट द नॉमिनल हेड ऑफ अ स्टेट। ठीक है, द हेड ऑफ स्टेट इज president, but the head of government is prime minister. ठीक है, तो इंडिया में बिकॉज इट इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ऑल्दो हर जगह पे उनके साइन चलते हैं, ठीक है, ऑल दी डिसीजंस, ऑल दी ऑफिशियल और द लीगल डिसीजंस मेड in the government, they are signed by or passed by president, but the true authority lies with the prime minister only, with the government. ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो चलाती है हमारा इंडिया। हाँ जी बेटा। मैम सपोज कि हम प्राइम मिनिस्टर कोई लॉ पास करता है, मैम अगर प्रेसिडेंट साइन नहीं करेगा तो मैम पास नहीं होगा ना? नहीं बेटा, आप ध्यान से सुन लीजिए, प्राइम मिनिस्टर लॉ नहीं पास करता है, इट इज द लेजिस्लेचर, ऑल द मिनिस्टर्स इन पार्लियामेंट दैट पासिस अ बिल। ठीक है, जब हमारी लोकसभा में एक बिल पास हो जाता है, ठीक है, लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में जाता है। आपको पता है एक बार लोकसभा में जो बिल पास हो जाता है वो राज्यसभा या प्रेसिडेंट उसको एक बार वापस कर सकता है कि आप दोबारा उसे देखिए, लेकिन दूसरी बार उसको वो वापस नहीं कर सकते। दूसरी बार अगर वो बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास तो प्रेसिडेंट हैज टू साइन इट। समझ आ गया? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स अगर उसको वोट करेंगे तभी वो बिल पास हुआ है, और डेमोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर मेजॉरिटी हैज द पावर। अगर मेजॉरिटी ने पास कर दिया है तो प्रेसिडेंट को वो बिल साइन करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, लेकिन मर्जी है
अब आगे एमपीज की कि उसपे कोई चेंजेस करें या ना करें, वो सेम का सेम बिल दोबारा वापस भेज सकते हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट को फिर साइन करने ही पड़ेंगे। ओके मैम। ठीक है, तो लेट्स कम बैक टू द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में क्या होता है कि ये जो यस, इसको अपनी अकल से ज्यादा क्यों? can you all mute yourself? If you have a question, then only you can unmute. Otherwise, try to write the question. If there is, yes, I would like everyone to mute. Okay, the third feature, पहला feature हो गया more than two tiers or levels of government. The second feature is that the government the different tiers or different levels of government govern on the same group of people but have got their own jurisdiction. The third feature of federalism is that the authority or this jurisdiction is legally granted to the to all the levels by the constitution. ठीक है, it is constitution that has granted the jurisdiction to all 3 or 2 tiers or levels of the government. This is the third feature of federalism. The fourth feature of federalism is that these provisions of federalism, the provision of federalism cannot be unilaterally changed. Unilaterally means कोई एक level change नहीं कर सकती है. Center government अकेली मिलके फेडरलिज्म के ऊपर कोई लॉ नहीं या चेंज नहीं कर सकती है फेडरलिज्म के लॉज को. ठीक है, such changes require the consent of central as well as state level of government. ठीक है, यूनिलेटरली हो गया, अकेले डिसीजन नहीं लिया जा सकता फेडरलिज्म की प्रोविजंस पे. The fifth feature of federalism is that the courts have the authority or the power to interpret the constitution and the powers to different levels of the government. ठीक है, जो कोर्ट होता है, कोर्ट जुडिशरी जो हमारी होती है, एक्चुअली इसका फंक्शन क्या है? टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम कहीं पर भी अराइज होती है तो कोर्ट जो है वो कहता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली ये काम ऐसे होना चाहिए, और फिर जो ठीक है उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ काम हो रहा है उसको फिर सुप्रीम कोर्ट पास कर देती है और बाकियों को स्टे कर देती है, स्टे लगा देती है. कहते हैं ना स्टे लग गया. स्टे लगने का मतलब है, I'll explain, Yogita, I'll explain all the features again, don't worry. So courts have the power to interpret the constitution and the powers to different levels of government. If there is any a dispute among the central and the state government or state and state government, so there are courts who interpret and who take the right decision. ठीक है, अगर स्टेट और सेंटर के बीच में कोई आपस में प्रॉब्लम चल रही है तो कौन सॉर्ट आउट करेगा उस प्रॉब्लम को? इट्स द कोर्ट. So courts have the power to interpret the constitution and the powers of different levels of the government. Sixth is that now the working of each level of government requires money. ठीक है, काम करने के लिए पैसा भी चाहिए. पैसा आपको पता है गवर्नमेंट के पास कहां से आता है? टैक्सेस का आता है. ठीक है, तो टैक्सेस भी डिवाइड होते हैं. सेंटर को कितने पैसे जाएंगे और स्टेट को कितने पैसे जाएंगे. आपने कभी जीएसटी का बिल देखा है? जीएसटी के बिल में सीजीएसटी अलग से जाता है, दैट मींस सेंटर को जो टैक्स जाना है वो अलग से जाता है, और स्टेट जीएसटी अलग से आता है. ठीक है, तो द रेवेन्यू हो गया कि कैसे जो टैक्स जाता है गवर्नमेंट के पास, तो रेवेन्यू इज आल्सो डिवाइडेड. अगर हमारा सारा टैक्स जा रहा है गवर्नमेंट के पास तो वो टैक्स डिवाइड होके जाता है. कुछ पार्ट टैक्स का स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है और कुछ टैक्स का पार्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, क्योंकि पैसा तो हर लेवल को चाहिए. इवन द स्टेट गवर्नमेंट हैज टू गिव अ पार्ट ऑफ इट्स रेवेन्यू टू द लोकल लेवल गवर्नमेंट आल्सो. ठीक है, जब हम टैक्स देते हैं हम सिर्फ सेंटर और स्टेट को टैक्स देते हैं. ठीक है, लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसके पास फिर पैसा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है. स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लोकल लेवल गवर्नमेंट को पैसे देती है. ठीक है, रेवेन्यू देती है. लेकिन
हमारा जो रेवेन्यू है वो सेंटर और स्टेट को फिक्स्ड रेवेन्यू है कि इतने परसेंट सेंटर को जाएगा, हर प्रोडक्ट में से इतने परसेंट सेंटर को जाएगा, इतने परसेंट स्टेट को जाएगा, ठीक है। सो द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ताकि एक दूसरे के ऊपर फाइनेंशियल डिपेंडेंसी ना हो। अगर स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे लेने पड़ेंगे तो कैन द स्टेट गवर्नमेंट वर्क इंडिपेंडेंटली? नो, इट कांट। दैट इज व्हाई द रेवेन्यू, द शेयर ऑफ रेवेन्यू इज डिसाइडेड एंड they are completely, you know, divided between the central and the state government to ensure the financial autonomy. Autonomy ho gaya that there would not be any dependence on each other regarding financial matters, theek hai. And finally the last and the seventh and the last feature of federalism is that the federal system has dual objectives: to safeguard and promote the unity of the country and at the same time accommodate the diversity also, regional diversity also. This is the seventh feature of federalism. इस feature को अच्छी तरह समझिए। फेडरलिज्म कहता है एक तो यूनिटी और इंटीग्रिटी कंट्री की प्रमोट करता है। कैसे प्रमोट करता है? इंडिया इज वन, इट इज प्रमोटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नो स्टेट गवर्नमेंट प्रमोट्स इंडिया एज वन कंट्री, इट इज ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट प्रमोट्स इंडिया एज वन कंट्री, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट्स का काम है कि अपनी अपनी रीजनल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करके रखना, ठीक है। हर एक स्टेट अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशंस के लिए कुछ भी लॉज बना सकती है और उनके अकॉर्डिंगली काम कर सकती है उनको प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। तो हमारा जो ड्यूअल सिस्टम होता है फेडरलिज्म का, स्टेट और सेंट्रल लेवल का, इसका ड्यूअल ऑब्जेक्टिव होते हैं। दो ऑब्जेक्टिव एक साथ अचीव हो जाती हैं। एक, unity or integrity of the country is preserved by the central government and regional diversity is preserved by the state governments, ठीक है। So these are the seven functions, seven features of federalism. Let us revise them once again quickly. The first feature of federalism is that it has two or more tiers and or levels of government. Second is that all both these tiers have got their own jurisdiction and they govern on the same people. The third is that this jurisdiction is specified in the constitution, right? Third is that this fundamental provisions of constitution cannot be unilaterally changed. एक अकेली गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती, both state and central governments consent is required. Fifth feature is that the courts have the power to interpret the constitution, right? If there is any dispute between central and state government or state and state governments, it is the courts, judiciary, which is going to decide or interpret the constitution to them and settle the dispute. The sixth feature is that the share of revenue is also decided so that, and the state and the central government, all the tiers have got their own share of revenue so that it maintains their financial autonomy. And finally, the dual objective of federalism is achieved. What is the dual objective of federalism? To promote and safeguard the unity of the country and to promote the regional diversity also. Have you understood all the seven features of federalism, everyone? Yes, ma'am. Good. So an ideal federal system has got mutual trust and agreement to live together, ठीक है। A good federal structure, an ideal federal structure is the one which has got mutual trust between the central and the state governments and an agreement to live together, to coexist. This is how the federal system works, right? So now how these federations are formed. फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि फेडरलिज्म क्या होता है और फेडरलिज्म जो है उसके फीचर्स क्या हैं. नाउ हाउ दीज फेडरेशंस आर फॉर्म्ड. एक कंट्री है, एक कंट्री को फेडरल कंट्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है. ठीक है, देयर आर टू वेज इन विच द कंट्रीज
they convert into federations, right? One is holding together of federations and the second one is coming together of federations. There are two ways in which there are two routes through which federations are formed. ठीक है? There are two ways through which federations are formed. One is coming together and the second one is holding together of federations. Coming together of federations का मतलब है कि अलग अलग छोटे छोटे यूनिट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट यूनिट्स थे पहले और वो सारे एक साथ आए हैं. कमिंग टुगेदर आए हैं वो एक साथ ताकि अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा सके. मेन रीजन होता है उसमें सिक्योरिटी का. ठीक है? क्योंकि छोटे छोटे रीजन्स को एनीबडी कैन कम एंड through power it can overtake that small unit or small area. तो पहले क्या होता था कि अभी भी छोटे छोटे कंट्रीज जो छोटे छोटे यूनिट्स जो इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं वो एक साथ आते हैं और मिलजुल के एक सिंगल कंट्री बनते हैं. That is called as coming together of federation. The example is USA, Switzerland and Australia. इन कंट्रीज में क्या हुआ था, जैसे यूएसए का एग्जांपल ले लेते हैं कि यूएसए में अलग अलग जितनी भी स्टेट्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जितनी भी स्टेट्स हैं यूएसए की वो सारी इंडिपेंडेंट यूनिट्स थे. ठीक है? उन सब ने मिलजुल के कहा कि हम सारे मिलके अपना एक लीडर चूज करेंगे. ठीक है? वो एक लीडर किस लिए चूज करेंगे? वो इसलिए चूज करेंगे ताकि वो उनकी सिक्योरिटी. ठीक है? एक छोटी यूनिट अपने आप को नहीं बचा सकती है फॉरेन इन्वेजन से. ठीक है? लेकिन जब सारे मिलके रहेंगे तो दे ऑल कैन प्रोटेक्ट ईच अदर. राइट? सो अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में कमिंग टुगेदर ऑफ फेडरेशंस बने थे. ठीक है? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कमिंग टुगेदर ऑफ फेडरेशंस. All constituent states usually have equal power in coming together and are strong vis-a-vis the federal government. जैसे federal government strong की strength they make a strong federal unit coming together. इसमें जितनी भी independent units होती हैं they have equal powers. Right? They have equal powers. दूसरा आता है holding together of federations. Holding together federations में क्या होता है कि जैसे इंडिया, स्पेन और बेल्जियम, they are the examples of holding together of federations. अब इनमें क्या हुआ था? इनमें क्या होता है holding together federations में, that the country which is a large country, it decides to divide its power between various constituent units. ठीक है? इसमें क्या होता है कि अलग अलग जितनी भी constituent units हैं वो अपनी पावर जो है वो डिवाइड करती हैं. ठीक है? ताकि इट्स नॉट फॉर सिक्योरिटी बट इट इज फॉर द व्हाट इट इज सेड फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री. राइट? सो for proper administration of the country, a large country divides its states. Its country, a large country is divided into different states. That is called holding together of federation. Coming together में छोटी छोटी states एक साथ मिलके एक country बनाती हैं और holding together में एक बड़ी country अपनी area को छोटे छोटे units में divide कर देती है for better administration. ठीक है? क्योंकि इतनी बड़ी country को एक one person cannot look after. लेकिन holding together में problem है that all the units do not have equal powers. ठीक है? Very often the constituent units of federations have unequal powers. जैसे हमारे इंडिया में J&K का example था. ठीक है? अभी present में नहीं है वो example because it has yes we are holding together और यहाँ पर unequal distribution of power था between different states. ठीक है? स्पेशल पावर मिली हुई थी जम्मू कश्मीर को, आर्टिकल 370 सबको पता है सबका. इसका लास्ट ईयर दिस आर्टिकल वाज रिमूव्ड. ठीक है? नाउ कम्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री. इंडिया को हम फेडरल कंट्री कहते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसी क्या बातें हैं जो हम फेडरल कहते हैं इसको. ठीक है?
इंडिया में ऐसे क्या हमारे कंट्री में ऐसा क्या है जिसे कि इंडिया को फेडरल कंट्री कहा जाता है, ठीक है। As I have already told you that India is not a true federal country. The word federal cannot be seen in our constitution. आपने सबने अपना preamble पढ़ा है, ठीक है, उसमें इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है, और in our constitution India is mentioned as union of states but not a federal country, ठीक है, ठीक है। तो although our country is based on federal structure but still it is not a true federal country. Why? Because the states do not have absolute powers. What do you mean by absolute power? Absolute power होता है जब किसी के पास पूरी की पूरी पावर आ जाए अपने जितने भी उसके सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए। हमारी स्टेट्स के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रूल कर सकती है, स्टेट्स को दबा सकती है। Okay, I have certain questions here. I have missed those questions. Let me see them. Ma'am, UT is an area which is too small to be made as state. But why JNK is a union territory? JNK has been made a union territory. बेटा आपने पिछले साल से अभी तक जितना भी पॉलिटिकल हमारा यहाँ पर okay. Why Jammu Kashmir has been made a union territory? Jammu Kashmir has been a special case, always a special case. ठीक है, आपने आगे चैप्टर पढ़ना है पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है आज के सिनेरियो को लेके, जो हमारे इंडिया में आज का सिनेरियो चल रहा है। या दे डोंट कंसीडर JNK एज यूनियन टेरिटरी, ठीक है, तो इसलिए JNK का जो स्पेशल पावर वाला जो वो है क्वेश्चन है वो अब नहीं होगा। 370 जो है वो अब आर्टिकल जो है वो नहीं रहा है, तो इसीलिए स्पेशल स्टेटस JNK को भी नहीं रहा है। नाउ लेट मी आंसर द क्वेश्चन व्हाई JNK हैज बीन मेड अ यूनियन टेरिटरी। JNK ऑलवेज हैड बीन अ स्पेशल इशू और द स्पेशल स्टेट फॉर द गवर्नमेंट। इसकी जो आर्टिकल 370 था उसके अकॉर्डिंगली जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। जम्मू एंड कश्मीर हैड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पूरे देश में जहां 5 साल के बाद असेंबली की इलेक्शंस होती थी, हमारे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में 6 साल के बाद होती थी, ठीक है। यस मधुर, हमारे 6 साल के। दूसरी बात, जो भी रूल, जो भी नया लॉ पूरी कंट्री में बनता था उसको जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई होने के लिए जम्मू एंड कश्मीर की जो लेजिस्लेचर है उसे पास करना। आपको पता है GST पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट होते उसे 1 महीने से भी ज्यादा लगा। क्यों? क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेचर है उसने पास करना था कि वो बिल आया है, ऑल्दो पास तो करना ही था क्योंकि इंडिया के अंडर है, लेकिन रूल्स में लिखा हुआ है कि जब तक जम्मू कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना लेजिस्लेचर उस नए लॉ को पास नहीं करेगा तब तक जम्मू एंड कश्मीर। तो ये सारी जो चीजें थी वो जम्मू एंड कश्मीर में को अलग करती थी इंडिया से, ठीक है। हाँ, बाकी पूरे इंडिया में अगर किसी पंजाब में कोई रह रहा है और उसे दिल्ली में जाके रहना है, और दिल्ली में जो रह रहा है उसे पुणे में जाके रहना है, तो हर जगह पे वो अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते थे। लेकिन जम्मू कश्मीर में बाकी इंडिया का कोई भी बाहर का, आई मीन आउट ऑफ JNK स्टेट, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं ले सकता था, ठीक है। तो ये सारी चीजें सेटल करने के लिए, टू मेक जम्मू एंड कश्मीर an inseparable part of India, this article 370 had to be removed, and that is why in this Jammu and Kashmir, or because of the law and order situation also,
370 रिमूव करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे अपने अंडर रखा हमारी स्टेट को. इट हैज बीन मेड अ यूनियन टेरिटरी. ठीक है. इट इज बिकॉज ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऑल्सो हियर. दिस स्टेट कैन नॉट बी लेफ्ट on state government. So central government thought कि इसके ऊपर हम खुद ही रूल करेंगे, इसको हम अपने अंडर ही रखेंगे, इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया. ठीक है. Let's move now. What makes India a federal country? We have just 10 minutes left. So I would like कि ये वाला topic हम complete कर लें, बाकी chapter will take up in the next class. Okay. So how is India made a federal country? Now we know that Constitution declared India as Union of States. ठीक है. India को क्या बोला गया है? Union of States. ना कि although it did not use the word federation, but the Indian Union is based on principles of federalism. Although the word federation has not been used in Indian Constitution, but we have based a structure on, but we have made a structure on this. Okay. So, now union list. इंडिया को फेडरल स्ट्रक्चर देने के लिए हमने इंडिया को डिवाइड कर दिया हुआ डिफरेंट स्टेट्स में, और इंडिया इज कॉल्ड यूनियन ऑफ स्टेट्स, right? But because as in any federation, the different tiers enjoy separate jurisdiction, but the constitution clearly and our constitution also has clearly provided the three-fold distribution of powers between union and state governments. ठीक है. तो इंडिया को फेडरल स्ट्रक्चर देने के लिए देयर आर पावर्स व्हिच आर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. दे आर कॉल्ड एज लिस्ट्स. द पावर्स हैव बीन गिवन इन डिफरेंट लिस्ट्स. ठीक है. देयर इज वन यूनियन लिस्ट इन व्हिच द पावर्स ऑफ central government has been mentioned. One is state list in which the power of state government has been mentioned, and the third is the concurrent list in which those subjects are mentioned in which the union as well as state governments have to make laws together. ठीक है. It is quasi federal system. Very good Gaganjo, that's the right word you have used. ठीक है. तो यूनियन लिस्ट क्या है? सबसे पहले यूनियन लिस्ट है. इट इज यूनियन लिस्ट. आपको पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर डिफरेंट शेड्यूल्स. ठीक है. तो हमारा ये जो लिस्ट है दे आर गिवन इन द 7th शेड्यूल. Right? I would like everybody to write it, note it down somewhere, that the federal structure of India has been given in the 7th schedule of our constitution. ठीक है. तो 7th schedule में union list, concurrent list और state list लिखी हुई है. union list में वो subjects हैं जिसमें कि central government के subjects हैं जिसपे central government can make laws. What are those? And these subjects are of national importance, like foreign affairs. India के relation foreign countries के साथ कैसे होने चाहिए? It is a matter of national interest. कोई state government ये नहीं decide करेगी कि हमारी foreign policy कैसी होनी चाहिए. Foreign policies are always decided taking into consideration the whole country, right? So it is the central government who has. Yes, there are 97. So defense is also of the defense of the country is also under union list. Then banking, communication, currency. इंडिया में कैसे करेंसी होनी चाहिए? ये हो सकता है कि हमारे स्टेट की अलग करेंसी हो, उस स्टेट की अलग करेंसी हो. नहीं, पूरे इंडिया में सेम करेंसी होनी चाहिए. That is why this subject is of national importance and is under union list. जहां पर भी आपको लगे कि आपको जहां पर भी लगे कि ये सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में है कि स्टेट लिस्ट में है, आप ये देख लो कि इफ इट इज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इट शुड बी अंडर द स्टेट द यूनियन लिस्ट, राइट. सेकंड इज द स्टेट लिस्ट. आपको पता है यूनियन लिस्ट पे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट लॉज बना सकती है. ठीक है. तो सारे लॉज पार्लियामेंट में बनते हैं यूनियन लिस्ट पे, जितने भी लॉ बनेंगे.
Then comes the state list. State list are they contain the subjects of state and local importance, right? Such as police. पुलिस जो है हर एक स्टेट की अपनी होती है, समझ आया? Every state has got its own police and the police is under the state government. उसके बाद क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है हमारी पुलिस ने देखना होता है, लोकल देखना होता है, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट आके नहीं देखेगी कि कहाँ पे चोरी हो रही है, आपके घर में किस एरिया में कितनी चोरी हुई है, मर्डर हुआ है, दंगे हुए हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट का छोटी लेवल का कंसर्न है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। लॉ एंड ऑर्डर पुलिस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, एक स्टेट में कितना पानी है, अंडरग्राउंड वाटर कितना है, कैनाल्स कैसे बनेंगे, ये सब्जेक्ट्स जो है इरिगेशन के, एग्रीकल्चर के, सॉइल कैसा है, किस तरह का एग्रीकल्चर होगा, वो सारे सब्जेक्ट जो है दीज आर अंडर स्टेट गवर्नमेंट। देन कम्स द कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट होता है जिसमें आई थिंक somebody has switched on the जिसने अब somebody has unmuted himself or herself. प्लीज बेटा अपना सारे म्यूट कीजिए। Okay, Nilanshu, abhi it's mute now. Okay, so the third one is the concurrent list. Concurrent includes subjects of common interest of both center and state, right? So what are the subjects of common interest? Education, सबसे पहले एजुकेशन जो है उस पे जो लॉज बनते हैं वो सेंटर और स्टेट दोनों बनाती है, ठीक है? हमारे स्टेट स्कूल्स हैं क्योंकि सेंटर एक बनाती है बाउंड्री जिसपे कि एक क्राइटेरिया बनाती है जिसपे एजुकेशन लेवल में चलना होता है, लेकिन हर एक स्टेट को देखना होता है कि उसकी स्टेट में कितने रिसोर्सेज हैं, कैसे लोग हैं और कैसे एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है। तो एजुकेशन इज द मैटर ऑन विच बोथ सेंटर एंड स्टेट टुगेदर मेक लॉज, ठीक है? उसके बाद देयर आर अदर सब्जेक्ट्स एज फॉरेस्ट, trade unions, marriage, adoption and succession. What do you mean by succession? Succession होता है succeed करना, आगे प्रॉपर्टी, ठीक है? जो प्रॉपर्टी होगी वो कैसे आगे पास होगी, इट इज कॉल्ड एज सक्सेशन। इस पे जो लॉज बनते हैं, मैरिज पे जो लॉज बनते हैं, वो एक ट्रेड यूनियंस पे जो लॉज बनते हैं उसपे बोथ यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट्स, राइट? एंड इफ देयर इज अ conflict between center and state government on the laws, किसी सब्जेक्ट पे कंफ्लिक्ट हो गया कि ऐसा लॉ नहीं ऐसा बनेगा, तो द लॉ मेड बाय यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, जब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके लॉ बनाएगी और किसी लॉ पे सपोज उनका आपस में कंफ्लिक्ट हो गया है, ठीक है? जो लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया है वो स्टेट गवर्नमेंट कहती है हमने पास नहीं करना है, ठीक है? तो उस पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है वो प्रिवेल करेगा, स्टेट गवर्नमेंट का लॉ नहीं माना जाएगा उस पे। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि स्टेट के क्यों हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास प्रॉपर या एब्सोल्यूट पावर्स नहीं है, ठीक है? दे आर अ बिट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ आया? नाउ देयर इज वन मोर सब्जेक्ट, there is one more group of subject which are called as residuary subjects. Now what are residuary subjects? आपको पता है जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे नए लॉज आते हैं, ठीक है? 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ था, ऑल्दो नवंबर 1949 में तैयार हो गया था, बट 26 जनवरी 1950 में जब इम्प्लीमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, उस वक्त ऐसी कई चीजें थी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी और उनपे लॉ ही नहीं बने, ठीक है? ठीक है, तो वो सब्जेक्ट्स जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल यहाँ पे आता है हमारा इंटरनेट। इंटरनेट जो है वो 1980s, 1990s और 2000 में जो है वो हमारी कंट्री में आया, 1980s में 90s में आया ज्यादा। तो उसके जो साइबर लॉज, यू ऑल नो अबाउट साइबर लॉज, तो जो साइबर लॉज थे वो कौन बनाएगा?
स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। वो चीज सब्जेक्ट्स जिनके बारे में मेंशन नहीं किया गया और जो नए सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स हो गए, जो नए सब्जेक्ट्स बन जाते हैं, नई टॉपिक बन जाते हैं जिसपे हमें लॉ बनाना पड़ता है, वो रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स पे हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाएंगे। समझ आ गया, ठीक है। The union government has the power to legislate on residuary subjects. Legislate means to make laws. So the union government has the power to make laws on the residuary subjects. Got it? उसी तरह जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी पे जो नए लॉज बनेंगे, आईटी एंड कम्युनिकेशन पे, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, क्योंकि वो रेजिड्यूरी सब्जेक्ट है। वो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जब लिस्ट बनाई गई थी, तब वो मेंशन नहीं किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो the union government has the power to legislate on the residuary subjects. Got it? ठीक है। तो जैसा आपकी बुक में लिखा हुआ है स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो सबको पता है। और आपको अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में रिगार्डिंग स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो उसको आप पास्ट टेंस में बात करेंगे। आप बोलेंगे दैट जम्मू एंड कश्मीर हैड द स्पेशल स्टेटस as far as the property rights are concerned and the constitutional rights are concerned. Jammu Kashmir had this special status, but last year this special status was removed. Article 370 was removed, and thus Jammu and Kashmir became the union territory of India. इस तरह से आप लिखेंगे, right? So we are going to finish up the class now. यहाँ पर कर देते हैं। उसके बाद हम बाकी जो आपके 2-3 टॉपिक रह गए हैं, we'll take up in the next class. Have you understood till today? We have studied about the features of federalism and how India has been made a federal country. What are the things which... No, chapter has not been finished. This is just half of the chapter. We'll be carrying on with the chapter next week, right? If you have any confusion till now, you can ask me the questions in the next class. Okay, beta? Thank you, beta. Thank you, everyone. God bless you, everyone. Bye. Bye, beta. Bye.